Let's move to another roots of student-centered learning, which is constructive theory. Learners internally construct their own knowledge rather than passively receive knowledge which is poured into learners by external agents such as teachers and course materials. It means that a learner, whatever learners learn in for learning second language, they construct, they they analyze whatever they learn by their own thing, okay, by their own mind. They construct their own knowledge and play passively, okay, and receiving knowledge which is poured into learners by external agents, and they have to receive, for example, a teacher teach English language, okay, and students learn, students जो है ना, हाँ, कैच करेंगे वो चीज़, ठीक है, और वो क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो एक्सटर्नल एजेंट्स ने हमें पढ़ाया है, वॉट एवर एजेंट्स, टीचर्स, एक्सटर्नल मटेरियल्स, टीचिंग मटेरियल्स, वॉट एवर, दीज आर all are external agents, and they are pouring learning into students, and students passively receiving and construct their own knowledge, okay. The process of knowledge construction is an active one based on learners taking information from teachers, course materials, internet, and other sources and making it their own by such means of explaining, debating, role playing, creating visuals, and comparing and connecting. Okay, whenever learners construct the learning by their own, construct the knowledge by their own, whatever external sources, okay, external sources include internet, notes, or course materials, teachers are external sources, and other many more, okay. When learners are receiving the knowledge from external agents and they construct their own, and by constructing, whatever they do, they explaining, debating, role playing, group discussion, these are the results, these are the outcomes of their constructions, okay. Creating visuals, comparing and connecting, these all are the ways to these all are the outcomes of the construction, okay. Number fourth is socio-cultural theory by Vygotsky. Socio-cultural is focused on scaffolding the learning students gain from and with teachers and peers. सोशो कल्चरल बाय देयर नेम, इसके नाम से ही जो है ना हम इस चीज़ को देख लेंगे कि हमें जो है ना वो सोशो कल्चर के बारे में जो है ना उसके अकॉर्डिंग लर्निंग करनी है, ठीक है। अब वो कैसे करनी है कि सोशो कल्चर जो है ना वो फोकस क्या करती है, स्कैफोल्डिंग पे करती है। अगर आप लोगों ने जो है वो कल्चरल थ्योरी पढ़ी है, सोशो कल्चरल विगोत्स्की की, पियाजे की जो है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पढ़ी हुई है पिछले ईयर में, ठीक है, तो आप लोगों को इनके बारे में पता होगा कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, कि लर्नर्स जो है ना वो कोई भी नॉलेज जो है वो गेन करें अपने टीचर्स और पीयर्स से, ठीक है, जो उसके क्लासमेट्स वगैरह होते हैं उनसे। तो ये जो है ना स्कैफोल्डिंग पे फोकस करती है। दूसरी, ओनली इंटरेक्टिंग एंड जस्ट शेयरिंग इज नॉट मीन टू लर्न, इट इज ऑल अबाउट मीनिंगफुल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशंस क्रिटिकली। अच्छा, सोशो कल्चरल थ्योरी का जो मेन फोकस है ना वो ये है कि स्टूडेंट्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उनको नॉलेज दी जाए और वो जो है ना जस्ट उस नॉलेज को जो है वो इंटरेक्ट करें किसी के साथ, ठीक है, जो भी चीज़ है, अगर वो पीर के साथ कर रहे हैं, टीचर्स के साथ कर रहे हैं, क्लासमेट्स के साथ कर रहे हैं, तो सिर्फ उसका काम शेयरिंग का नहीं है, उनका काम है कि वो जो है ना क्रिटिकली थिंक भी करें, ठीक है, क्रिटिकली उसको एक्सप्लेन करें और उसको जो है ना, मतलब क्रिटिकली का क्या मतलब है कि वो फॉर एग्जांपल दो मेंबर्स जो हैं, दो क्लासमेट्स जो हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जस्ट इंटरेक्शन तो नहीं करेंगे कि इंग्लिश जो है वो ये होती है, वो होती है, ठीक है, या कोई डेफिनेशन बता दें, नहीं, वो उसको पूरा एक्सप्लेन करें, वो एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करें, एक दूसरे को आंसरिंग करें, ये क्या होती है, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशंस होती है, ठीक है। और मीनिंग भी प्रोवाइड करें, ठीक है, कोई भी चीज़ हम किसी के साथ बोल रहे हैं ना उसका मेन मीनिंग होनी चाहिए, मकसद होना चाहिए। द सोशो कल्चरल थ्योरी हैज मच इन कॉमन with constructivism, including that they both emphasizes what has been called social constructivism, constructing knowledge in a process of learning from and with others। अच्छा, सोशो कल्चरल थ्योरी को हम क्या कहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का
क्या मतलब है कि हम जो है ना वो सोशल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करें। जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म में मैंने बताया ना कि स्टूडेंट्स खुद कंस्ट्रक्ट करता है किसी भी नॉलेज को, तो इसका क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम अदर्स। मतलब दूसरों से भी हम लोग सीख सकते हैं ना, ऑब्वियसली हम हर चीज से सीखते हैं, एक पेन से भी सीखते हैं, एक चोटी से भी सीखते हैं। तो इसका यही कहने का मकसद है कि हम लोग जो है ना वो दूसरों से भी सीखते हैं। सोशो कल्चर थ्योरी का मेन मकसद जो है ना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे है, ठीक है, ताकि हम जो भी चीज करें, जो भी कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज लर्निंग के प्रोसेस में, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में करें, तो हम क्या करेंगे, वो सीखेंगे दूसरों से, ठीक है। Okay, let's move to another topic, which is linking 10 elements of student-centered learning with second language pedagogy. Okay, which are the 10 elements of student-centered learning which apply in second language pedagogy, means second language teaching. Okay, so first element is student and teachers as co-learners. That by the topic you all already know what is it about. Okay, so यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक देख के ही पता चल रहा होगा कि टॉपिक किस चीज के बारे में है, कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज अ को लर्नर्स। ठीक है, स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो आपस में किस तरह लर्न कर रहे हैं, उन दोनों का कनेक्शन बता रहा है। लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा जो है ना कोट है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, विच इज टू नो दैट यू नो नथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू नॉलेज। ओके, आपको सब कुछ पता है ये ना बोला करें, आपको कुछ भी नहीं पता, भले आप लोग कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी कुछ आता हो, आप लोग हमेशा यही चीज सोचा करें कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, असली नॉलेज जो है ना आप लोगों की वो है कि आप लोग ये बोले कि हमें कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर आप, क्योंकि यही चीज है ना, आप लोग दिन ब दिन जो है सीखते रहेंगे, हम ये बोलेंगे ना हमें कुछ भी नहीं आता, तो हम दिन ब दिन जो है वो सीखते रहेंगे। ये मेन कोड है उसका, ठीक है। अब इसका क्या है, इन द एरिया ऑफ लैंग्वेज माइकल हेलिडे स्टेटेड दैट लैंग्वेज इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, माइकल हेलिडे क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज वी नो दैट न्यूक्लियर फिजिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड वन। ओके, सो लैंग्वेज इज लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स बट लैंग्वेज इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इज better easy according to language as compared to language. Okay, how it is difficult, as we know that teachers and students being co-learners from and with each other, and another way of being co-learner is that electronic resources. Okay, now I'm continue with one line. As we know that teachers and students being co-learners from with each other, students और teachers क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, co-learners हैं। ठीक है, मतलब students जो है वो teacher से सीखते हैं और teachers क्या करते हैं, students से सीखते हैं। ठीक है, and with each other, and another way of being co-learner is that electronic sources. अच्छा, ये तो फिजिकल चीज हो गई ना कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से सीखते हैं और टीचर्स जो है वो स्टूडेंट से सीखते हैं। दूसरा को-लर्नर का वे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज है। ठीक है, लाइक वेबसाइट्स एंड एप्स डिजाइन फॉर लैंग्वेज लर्निंग। जो वेबसाइट्स और एप्स डिजाइन की जाती हैं लैंग्वेज लर्निंग से, वहां पे भी ऑब्वियसली वहां पे भी कोई सिखाता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है कि हम किसी और चीज से सीख रहे हैं। मेन इस टॉपिक का मकसद क्या है, जरूरी नहीं है कि आप टीचर से ही सीखें। यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है तो जाहिर बात है हमें लर्न कौन करवाता है, टीच कौन करता है, हमारा टीचर करता है, चाहे वो कोई भी हो। हम कहते हैं ना एक अलिफ भी आपको कोई सिखा रहा है तो वो आपके उस्ताद के बराबर है। तो वो चीज हो गई यहाँ पे कि आप कहीं से भी कुछ कोई चीज सीख रहे हैं ना, तो दिस इज योर टीचर। ओके, वॉट एवर इट्स ह्यूमन बींग और वॉट एवर वेबसाइट्स और एप्स वगैरह, वेबसाइट्स और एप्स भी हमारी टीचर ही है क्योंकि वो हमें सिखाती है। ठीक है, वो भी कोई चला रहा होता है। They express the critical thinking on topics and discover it together by discussing and interacting with each other. Teachers and students talk with or interact with each other by interacting. They discover by discussing, by critical thinking. They are interacting with each other. This is called students and teachers co-learners. हाउ, लाइक देखें आप लोग, देखें कि टीचर जो है, अब एक टीचर कोई स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन बताएं व्हाट इज ग्रामर। स्टूडेंट ने आंसर किया टीचर ग्रामर इज फला फला। ओके, अब स्टूडेंट ने वहीं पे ही दूसरा क्वेश्चन किया, मैम ये बताएं कि ग्रामर जो है उसमें ये चीज क्यों आती है, ये वो।
ठीक है, फिर टीचर ने बताया। इस तरह अगर टीचर को ना भी पता होगा तो स्टूडेंट खुद से अपनी 2-3 पॉइंट बता देगा। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट भी सीखेगा और टीचर भी सीखेगा। टीचर को जो चीज ना पता होगी ना वो भी सीख लेगा। लाइक अगर हम कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं ना तो हम लोग न्यू चीजें लाते हैं, ठीक है, जो इवन टीचर्स को पता भी नहीं होती कभी कभी। तो ये चीज होती है कि जब हम वो चीज प्रेजेंट करते हैं ना उनके सामने, तो सिर्फ हम नहीं सीखते या हम दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते, अपने क्लासमेट्स को नहीं सिखाते, इवन टीचर्स खुद भी सीखते हैं। ठीक है, और ये हमारे साथ फिजिकल हो भी चुका है। हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं उसमें टीचर्स जो जो हमारी चीजें देखते हैं ना, प्रेजेंटेशंस देखते हैं हमारी, हमने एप्स यूज किए, हमने वेबसाइट्स यूज किए, तो वो यही बोलते हैं कि हमें ये चीजें पता ही नहीं थी, हम कभी इन चीजों के पास गए नहीं और हमने अभी आप लोगों के साथ सीखी है। दैट इज द टीचर एंड स्टूडेंट स्कॉलर एज स्कॉलर्स। ओके, नंबर 2 इज स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन। नाउ यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट की कनेक्शन तो हो गया, इंटरेक्शन तो हो गई। अब स्टूडेंट स्टूडेंट की, क्योंकि क्लासमेट्स, फेलोज, ग्रुप मेंबर्स, फ्रेंड्स हम लोग खुद में भी तो करते हैं ना, तो उसमें क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट लर्निंग मीन्स पुटिंग देम इन द सेंटर ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट स्टूडेंट लर्निंग तभी हो सकती है जब आप स्टूडेंट को सेंटर ऑफ लर्निंग में रखेंगे। मतलब लर्निंग जो है ना आपकी वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगी। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एक्टिव रोल, इन विच स्टूडेंट प्लेस एक्टिव रोल, this is called student student interaction. Why? Because as we know that if we are presenting a project, or if we are hiring a project, a teacher hiring a project, he never hire a project, okay, a new project to one student. He always hire a member of groups, okay, group members. Like he make 3 members group, he make 10 members group. By grouping we are student student interaction. By grouping we are discussing with each other, with classmates, with every group member, and by discussing we learn many things. And what we make a student centered learning, and we play an active role. Student plays an active role. This is called a student student interaction, in which activities, in which learning, in which center student talk their classmates, talk with their mm, friends, talk with their group members, and they are monitoring each other. What is the meaning of monitoring? Monitoring is like we make a group and we are suggesting some things. Like if I am saying that I am a monitor of this group, or I am a leader of this group, or you are a leader of group, he may guide us more than us. Okay, and he may hire the topics, he may distribute the topics according to the project, like this, because guidelines are more important than वर्किंग। ओके, अगर आपके पास गाइडलाइंस ही नहीं होगी आप लोग वर्किंग कैसे करेंगे? तो गाइडलाइंस के लिए कौन होना जरूरी है? एक आपके पास लीडर होना, मॉनिटर होना जरूरी है। तो स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन में क्या होता है, मॉनिटरिंग भी होती है कि आप मॉनिटरिंग का रोल भी प्ले करते हैं। ठीक है, आप लोग डिस्कसिंग का रोल भी प्ले करते हैं। Many roles we can play. By interacting with peers, students become more active and teachers play passive role by monitoring them while interacting with each other. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट का तो हो गया कि स्टूडेंट जो है वो मॉनिटरिंग रोल प्ले करते हैं, लेकिन टीचर क्या करता है? ये तो चले स्टूडेंट की बात हो गई ना, टीचर तो ऐसे बैठा नहीं रहेगा, टीचर भी मॉनिटरिंग का रोल प्ले करता है। जो स्टूडेंट होता है ना वो स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब अपने ग्रुप मेंबर्स के बीच में मॉनिटरिंग का रोल प्ले करता है, और जो टीचर है ना वो अपने स्टूडेंट्स के बीच में जो है मॉनिटरिंग का रोल प्ले करता है। अब वो कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, अब 2-3 ग्रुप्स बने हुए हैं। अब टीचर क्या करेगा? जब टीचर ने उनको टास्क दे दिया फिर टीचर बैठ तो नहीं जाएगा, टीचर उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, उनको गाइड करेगा, देखता रहेगा। ठीक है, अगर इसका मैं बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन एग्जांपल आप लोगों को दूं कि हमारी एक टीचर थी, ठीक है, पिछले ईयर में, मैम समीना नाम था उनका। तो उनका क्या था कि वो उन्होंने ग्रुप्स बना के वो देख रही थी कि किस ग्रुप में किस तरह का काम चल रहा है। ठीक है, कि मतलब कौन सही, और वो सुनती भी थी कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। फिर कहीं पे मिस्टेक करते थे तो वो बताती ये चीज ऐसी है, या कुछ क्वेश्चनिंग करती थी, ये क्या थी, वो मॉनिटरिंग कर रही थी, वो हमें गाइड कर रही थी, या हमारे साथ जो है वो इंटरेक्शन कर रही थी, लेकिन ज्यादा उनका रोल नहीं था, क्योंकि ज्यादा हमारा अपना रोल था। हमें एक टास्क प्रोवाइड किया गया था, वी हैव टू प्रोवाइड इट बाय टास्क एंड वी हैव टू डू इट।
Number third point is passive role of teacher impact more in students learning. It overcome the traditional way of teaching and students play active role for long term learning. अब टीचर का पैसिव रोल जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना एक्टिव रोल प्ले करके लॉन्ग टर्म लर्निंग करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग अगर एक्टिव रहेंगे, हम खुद स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कोई चीज सुनने से बेहतर है कि खुद कर रहे हैं तो वो चीज हमें याद भी रहती है, ठीक है। सुनने वाली चीज हमें 2-3 दिन याद रहेगी, 1 मंथ याद रहेगी, लेकिन करने वाली चीज जो है ना वो हमेशा हमें याद रहेगी। उसका एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस हैं, तो वो हम कभी भी भूलते नहीं है। तो ये चीज है कि स्टूडेंट एक्टिव रोल जहाँ पे प्ले करता है ना तो वो लॉन्ग टर्म लर्निंग बन जाती है। Okay, now Jacob said that one frequent piece of advice suggests that teachers coach their students in the use of collaborative skills. मतलब कि टीचर्स जो है ना वो स्टूडेंट्स को कोच कैसे करते हैं, कोलैबोरेटिव स्किल से। मतलब उनको स्किल्स पहले बताते हैं कि आपको जो है, ये नहीं बोलते कि आप लोग ग्रुप बना लें, ये टास्क है आपका, आप खुद करें। वो बताते हैं कि ये स्टूडेंट भी बात करेगा, ये स्टूडेंट, ये क्या स्किल्स है उनको सिखाना है, ठीक है। स्किल्स दैट एनेबल ग्रुप्स टू फंक्शन वेल, skills such as praising others, asking for reasons and offering suggestions, ठीक है। स्किल्स में क्या आ जाता है कि हम लोग जो है वो रीजंस, कोई भी हमें हमारा ग्रुप मेट जो है वो कुछ कुछ भी बताया, हमें किसी भी पॉइंट के बारे में बताए, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम उनसे क्वेश्चन पूछें, उनसे रीजन करें, ठीक है। या हम जो है वो उनको बोलें कि हमें बताएं कि ये कैसे है, या अगर कोई सही बताए तो उसको कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ये होती है स्किल्स कि हम ग्रुप एक बना के स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में क्या क्या करेंगे। Second language students often lack the language involved in utilizing collaborative skills for enhance to encourage students to praise their group mates. Teacher might want to pre-teach praising कम्बिट्स, ठीक है। अब प्रेज करना एक अच्छी बात होती है कि जो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं बोलता ना और अगर वो कुछ बोलता है, ठीक है, एक तो वो कभी बात नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है, फिर वो अगर कोई पॉइंट वगैरह बोले ना तो उसको प्रेज करना चाहिए ताकि उसको मोटिवेशन मिले और वो आगे और बताए, ठीक है। आगे और बताए मतलब आगे और जो है वो पार्टिसिपेट करे, ये चीज होती है। प्रेजिंग जो है वो लाजमी करनी है। Okay, the next one is learners autonomy. Learners autonomy said that support networks prepare students for learners autonomy. Benson defined as a capacity to control important aspects of one's learning. ठीक है, ये एक कैपेसिटी है कि आप जो है किसी की लर्निंग को कैसे कंट्रोल करते हैं। टेक इंक्रीजिंगली ग्रेटर कंट्रोल ऑफ देयर ओन लर्निंग इन प्रिपरेशन फॉर becoming lifelong learners, like for example internet sources such as online dictionaries facilitate learners autonomy. अच्छा, यहाँ पे ये है कि आप जो है वो किसी की लर्निंग को कंट्रोल में कैसे लाते हैं, उनके एक्सपेक्ट्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग को कंट्रोल में ये नहीं है कि हम जो चाहें खुद से उनको करवाएं, मतलब कि स्टूडेंट जो है वो खुद से लर्न कैसे बिल्ड कर सकता है, अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज कैसे बिल्ड कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है, सेम वही बात कि वो एक्टिव रोल प्ले करेगा तभी वो अपनी जो है ना स्किल्स को, अपनी नॉलेज खुद बिल्ड कर सकता है, ठीक है। उसमें ये है कि हम उनको जो है वो इंटरनेट, सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो ये है कि हम उनको इंटरनेट रिसोर्सेज दे सकते हैं, लाइक डिक्शनरीज, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, अभी लिंक्स आती हैं, तो ये सारी चीजें क्या है कि इसमें जो है लर्नर्स ऑटोनॉम होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स कैन बी गिविंग चॉइसेस इन एरियाज सच एज सब टॉपिक्स टू स्टडी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो कैसे है कि आप स्टूडेंट की जो है ना लर्निंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये टीचर के बारे में है, ठीक है। कि वो स्टूडेंट की लर्निंग कंट्रोल का मतलब ये है कि वो मतलब अपनी जो है ना ज्यादा अपनी चीजें उन पे ना डिपेंड करे कि मैं ही अगर बताऊंगी तो स्टूडेंट्स को वही चीजें, स्टूडेंट खुद से भी कोई अपनी नॉलेज बिल्ड करे, ठीक है, अपनी ओन लर्निंग करे। तो उसमें क्या होता है कि अगर टीचर ने कोई भी टॉपिक बता दिया है तो वो उनको बोल सकता है कि आप इनके सब टॉपिक्स बताएं मुझे। या यहाँ पे एक दो टीचर ने हमारे साथ ऐसे किया था, उन्होंने एक वर्ड बताया था, ठीक है, उसकी मीनिंग बताई थी, एक मीनिंग सिनोनिम बताया था। अब उस टीचर ने बताया था कि एक एक स्टूडेंट जो है ना इसके अकॉर्डिंग, इससे रिलेटेड जो है ना एक वर्ड में इस टॉपिक को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, सब टॉपिक्स। अब हम 120 स्टूडेंट्स थे या 100 स्टूडेंट्स थे तो वो 100 वर्ड्स आ गए, कुछ रिपीटेड थे, लेकिन ये था कि 100 वर्ड्स में जो है हमने सारे टॉपिक को डिफाइन कर दिया। ये हो गया कि स्टूडेंट्स को खुद से भी अब हमें वो चीज याद रही कि हमें जो है ना
अगर टीचर की नाम रहेगी या तो हमें मेट्स की रहेगी, ठीक है, क्लासमेट्स की, या हमें अपनी बोली भी वो वर्ड जो है ना अपना बोला हुआ याद रहेगा और उस वर्ड के अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज द लर्नर्स ऑटोनॉमी। नंबर सेकंड इज फोकस ऑन मीनिंग। ठीक है, अब मीनिंग पे फोकस कैसे किया जाता है? हाउ कैन स्टूडेंट्स कंट्रोल देयर ओन लर्निंग। ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लर्निंग कैसे कंट्रोल करते हैं, ये तो आप लोग पढ़ के हैं कि लर्नर्स ऑटोनॉमी है इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर लर्निंग। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लर्निंग तभी करेंगे जब उनको रीजन पता होगा कि वो लर्निंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, why they are learning, what they are learning and why the content is being taught in one particular way। ठीक है, वही बात हो गई कि अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल टीचर ने बोला है कि आप हमें जो है वो वर्ड बताएं, इस वर्ड टॉपिक के वर्ड्स में जो है इसको डिस्क्राइब करें। अब जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें ये सर टॉपिक, पहली बात कि ये सर टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें पहले रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए या हमारे लेवल के अकॉर्डिंग रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज कि हमें मीनिंग तो पता होनी चाहिए ना। अब कोई भी मुझे आके बोले कि जो है फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियर की स्टूडेंट हूँ और मुझे आके बोले कि अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं उस चीज को नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो बिल्कुल मेरी चीज से, माइंड से अलग है। यही चीज होती है, हम जो न्यू चीजें पढ़ते हैं ना, पहले उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, अब अगर मुझे उसकी मीनिंग पता चल जाए कि हमें ये चीज मिलती है, फिर मैं बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई हाइड्रोजन का फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है, और वो मुझे बता दे हाइड्रोजन को जो है ना हम क्या कहते हैं, H2O बता दे, ठीक है, H2O लिख ले कोई भी बोर्ड में। अब मुझे बता दे कि H2O को वाटर कहते हैं। अब मैं वाटर को बहुत तरीकों से जो है ना डिस्क्राइब कर सकती हूँ। H2O का उन्होंने क्या मुझे बताया, मीनिंग बताई कि ये वाटर है। अब मैं वाटर पे बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, भले वो मेरे लिए न्यू चीज हो, लेकिन उसकी मीनिंग तो मुझे पता है ना। मतलब मीनिंग और रीजन हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम रीजन पता होता है ना, हमें इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम वाकई में ये चीज पढ़े, हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब मैं इंजीनियर की स्टूडेंट हूँ, मुझे H2O क्यों पढ़ाया जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो जाएगा कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, मैं आंसर क्यों करूँ, ये चीज होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट का जो है ना वो लर्नर्स ऑटोनॉमी तभी बन सकती है, मतलब स्टूडेंट्स जो है वो अपनी ओन लर्निंग तभी कर सकता है जब उसको ये सारी चीजें पता होगी, उसको रीजन पता होगा, उसको मीनिंग पता होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर वे पता होगा। As we know that L2 learners face many things as they have first language. Now for learning L2, they should face difficulties in meaning and understanding of L2. So they should focus on मीनिंग। अब यहाँ पे जाहिर बात है हम सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं, सारी चीजें किस पे फोकस है, सेकंड लैंग्वेज पे, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकंड लैंग्वेज टीचिंग पे है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं ना, स्टूडेंट्स लर्न सेकंड लैंग्वेज फॉर अक्वायरिंग दे फेस मेनी डिफिकल्टीज। ठीक है, अब हमें कोई चीज पता नहीं है, हम कोई अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं, मैं चाइनीज सीख रही हूँ, ठीक है, तो मुझे चाइनीज का कुछ पता ही नहीं है, तो जाहिर बात है मेरे पास डिफिकल्टीज आएंगी। पहले मुझे उसके अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, फिर मुझे वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हमें जो है ना मीनिंग पता होनी चाहिए, हम मीनिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, okay, number second is curricular integration. Curricular integration is about connecting what students learn in school with real world। अब करिकुलर का आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं ना उसका एक करिकुलम बनता है। ठीक है, वो कैसे इंटीग्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स पे, उसके लिए जो है ना वो ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है ना, स्कूल की लर्निंग, वो हमेशा रियल लाइफ से कनेक्ट की जाए। ठीक है, वही चीज कि हमें जो है वो लॉन्ग टर्म लर्निंग चाहिए, हमें जस्ट 2 दिन की स्टडी नहीं चाहिए कि हम 2 दिन लैंग्वेज सीखेंगे फिर हमें सीखनी नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज चाहिए ना, उसके लिए हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज उसमें स्टूडेंट्स का एक्टिव रोल लाजमी होना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स जो है ना ये लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए हैं। It is like together the subjects they study with things they might experiences or care about outside of the school। मतलब आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, उसके एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स, ताकि वो टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाए, उस टॉपिक का रीजन हमें पता चल जाए कि वाकई में ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, instead of just learning a language by themselves, students might learn by 4 skills of language learning and topics related to their फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो लैंग्वेज लर्निंग जो है ना, लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स को सिखाने से जो है ना बेटर है कि आप पहले उनकी 4 स्किल्स उनको सिखाएं। ठीक है,
क्योंकि लैंग्वेज जो है ना हमेशा 4 स्किल्स पे डिपेंड करती है। लैंग्वेज जो है ना वो जस्ट ये नहीं कि हम बोलें, वो 4 स्किल्स पे डिपेंड करती है जो आप लोगों को पता है, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये स्किल्स, ठीक है। अब ये जो है ना ये स्टूडेंट्स को पहले पता होनी चाहिए कि स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं, राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अब आप लोग अगर सामने वाले बच्चे को बोलेंगे, 1 क्लास के बच्चे को या इवन केजी क्लास के बच्चे को बोलेंगे मुझे जो है वो स्कूल पे ऐसे लिख के दें, ही नेवर राइट, ठीक है। क्यों लिखेगा, उसको एबीसी नहीं पता, उसको अल्फाबेट्स ही नहीं पता, वो ऐसे क्या वो एक सेंटेंस भी अल्फाबेट भी नहीं लिख सकता, एक कैट का वर्ड भी नहीं लिख सकता, क्योंकि उसको बेसिक ही नहीं पता, उसको अल्फाबेट्स ही नहीं पता, बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं पता। तो यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग का जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, 4 स्किल्स हैं, ठीक है। और वो जो है ना टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि आप टॉपिक्स जो है ना आपके रिलेटेड होनी चाहिए आपके फ्यूचर के साथ, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स भले आप लोग कुछ भी सीख रहे हैं, ये नहीं है कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम पूरी दुनिया उनको सिखा के फिर ही लैंग्वेज सिखाएं, नहीं, आपको जो जो आपके फ्यूचर में काम आएगी ना चीज, वो सिखानी स्टूडेंट्स को। इससे टाइम भी बचता है और स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी होते हैं कि हाँ वाकई में ये चीज हमारे काम आ रही है, वो पढ़ते भी फिर शौक से।